and U is the universal set of A. Then U minus A, that is डिफरेंस ऑफ U एंड A, U और A का अंतर is called complementary set of A. Complementary set of A. And complementary set of A is denoted by A dash or A C. And read this complementary set of A. And this is denoted by A dash or A C. Here, if X belongs to A dash, means X belongs to complementary set of A, then implies that X belongs to U and X is not belongs to A. Implies that X belongs to is not belongs to A. बच्चों, यदि X कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ A का एलिमेंट है, मीन्स X A डैश का एलिमेंट है, तो क्लियर है X उस सेट में नहीं होगा जिसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में है। मीन्स यदि X A के पूरक समुच्चय का अवयव है तो X कभी भी समुच्चय A का एलिमेंट नहीं होगा। और यदि here we may write as if X belongs to A dash, then implies that X is not belongs to A. Remember this, very important. Next, if X belongs to A, means X given set A का एलिमेंट है, this we may write as X belongs to A and X belongs to U. Understand this. If X is the element of A, then certainly X is also element of universal set. Since all elements of A present in U, यदि X A का एलिमेंट है तो X निश्चित रूप से
ए का जो यूनिवर्सल सेट है, समष्टीय समुच्चय है, उसका भी एलिमेंट होगा। नेक्स्ट बी में राइट एज x belongs to u and x belongs to a, and this by the definition of complementary set we may write as x belongs to u minus a. Here not belongs to u minus a means u minus a में a के एलिमेंट आउट कर देने हैं। a के एलिमेंट जो u में हैं उन्हें निकाल देना है। तो जब a के एलिमेंट निकाल ही देंगे तो अब u में जो एलिमेंट है वो a के एलिमेंट अब रह ही नहीं गए और x a का एलिमेंट था, इसी के कारण u का एलिमेंट था। और जब x a का एलिमेंट x belongs to a and x belongs to u, and this we may write as x belongs to u and x belongs to a. So here we get x is not belongs to u minus a, that is x is not belongs to a. That is. So if x belongs to a, then x is not belongs to a dash. This is also very important, and remember this. और यहाँ a डैश या कॉम्प्लीमेंट्री सेट आप a को प्रॉपर्टी मेथड से ऐसे लिख सकते हैं, a डैश इज इक्वल टू x is such that x belongs to u but x is not belongs to a. A dash equal x belongs to u and x is not belongs to a. वेन आरेख द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दिस इज यूनिवर्सल सेट हु इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल. This is universal set and this is any set A who is given, then lining area represent complementary set of A. सेट A के एलिमेंट U में से निकाल लेने हैं और जो एरिया बचेगी A के बाद वो U माइनस A को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ A who is denoted by A dash equal U minus A. When diagram of A dash. Next, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय के गुणधर्म. फर्स्ट, इफ A is any set
then A dash dash equal A. A dash dash equal A. Means A कोई गिवन सेट है, A डैश उस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, तब A डैश डैश कॉम्प्लीमेंट्री सेट A डैश का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। और यहां कॉम्प्लीमेंट्री सेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, if A is any given set, then A dash dash equal A. This is first property. And you remember always this property, very important property. See proof. यहां A डैश डैश इक्वल A प्रूव करने के लिए बाय द डेफिनेशन हमें प्रूव करना होगा A डैश डैश सबसेट A एंड A सबसेट A डैश डैश। Let X belongs to A dash dash, then gives out X is not belongs to A dash। अभी मैं बताया if X belongs to B dash, then X is not belongs to B। Here you understand A dash equal B, then we may write here X is not belongs to A dash, gives out X belongs to A, since if X not belongs to A dash, then X belongs to A। So here we may write A dash dash subset A, and suppose this is first relation. Again let X belongs to A, gives out X is not belongs to A dash, or if X is not belongs to A dash, then certainly X belongs to A dash dash। So A is the subset of A dash dash। So, suppose this is second relation, and from first and second
we get by the definition of equal set, we may write here A dash dash equal E. This is very most important property. Understand very well and true. Next प्रॉपर्टी को डिमार्गस लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, और ये जो प्रॉपर्टीज अब हम लिखने जा रहे हैं डिमार्गन नियम कहलाती हैं। डिमार्गन्स लॉज। डिमार्गन नियम। If A, B, C are any three sets, if A, B and C are any three sets, then first A union B dash is equal to A dash intersection B dash। बच्चों ये हमें दो सेट A और B गिवन है, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करना है। तब हम A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड कर ले और B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड कर ले, और जो A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट प्राप्त हुआ और जो B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट प्राप्त हुआ, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन मींस दोनों के कॉमन एलिमेंट से सेट बना लेंगे, वही A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करने के लिए यहाँ A यूनियन B डैश को सबसेट A डैश इंटरसेक्शन B डैश शो करना होगा, और A डैश इंटरसेक्शन B डैश को सबसेट A यूनियन B डैश शो करना होगा। इस प्रॉपर्टी को अपनी बुक से स्वयं प्रूव करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड, A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल A डैश यूनियन B डैश। यहाँ यूनियन आएगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और जब यहाँ इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ यूनियन होगा। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, which is very most important property, और ये प्रॉपर्टी सदैव आप सभी को याद रखनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर्टी फर्स्ट नोट करें और अपनी बुक से हेल्प लेकर के उसे सेम प्रूव करें, जैसे मैं अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाया। ये भी प्रॉपर्टी हम प्रूव कर दें, लेकिन प्रॉब्लम की बात वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, और बुक में ये प्रॉपर्टी प्रूव की गई है। यदि कहीं ना समझ में आए तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंटमेंट कीजिए, लेकिन जो बच्चे देखते भी हैं वो भी कोई कमेंटमेंट नहीं करते, ये भी नहीं मालूम हो पाता है कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। नेक्स्ट, A माइनस B यूनियन C, थर्ड प्रॉपर्टी।
A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C. This is also most important property for all students. Next property, A minus B intersection C, सेम यहाँ यूनियन आया है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। A minus B इंटरसेक्शन C इक्वल A minus B। अब यहाँ इंटरसेक्शन आया है तो यहाँ यूनियन आता है A minus C। All of you prove all of these property by help your book. Next, I am going to solve question from exercise 1.5. बच्चों, मेन रूप से मैं क्वेश्चन इस बुक से सॉल्व करता हूँ और ये विद्या पब्लिकेशन की बुक है, राइटर YK चतुर्वेदी हैं। यदि आप सभी इस बुक को अपने पास रखते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके बाद हमें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अन्य बुक में दिखते हैं तो उन्हें भी सॉल्व हम करवाएंगे और वो क्वेश्चन भी हम बोर्ड पर लिख देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन हम इस बुक से सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं नोट करते हैं, केवल सॉल्यूशन ही नोट करते हैं। इसलिए यदि ये बुक आप सबके पास रहेगी तो सरलता होगी। यहाँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। मान लीजिए कि U इक्वल गिवन हियर और डिफिनीशन सेट में स्टार्टिंग से जितनी भी मैं बताया हूँ वो सभी डिफिनीशंस ऑलवेज याद होनी चाहिए, तभी ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आवश्यक होगा कि हमारी जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं उन्हें वो पहले वॉच करें, फिर इस वीडियो पर आए, तभी उन्हें समझ में आएगा। वरना सेट ये थियोरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन जब तक थ्योरी मीन्स डिफिनीशन थ्योरम ये सभी समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन सरल तो बहुत हैं लेकिन फिर भी उन्हें हल करने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ दिया है, मान लीजिए कि U इक्वल क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.5। जो बुक मैं अभी दिखाया, इस बुक में जो एक्सरसाइज 1.5 गिवन है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मान लीजिए कि U इक्वल, U मीन्स यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and given A equal 1 2 3 4. Next given B equal 2 4 6 8. And C equal 3 4 5 6. Then find here
first A dash, second B dash, third A union C dash, and fourth A union B dash. सबसे पहले I am finding A dash. A dash means complementary set of A. अभी मैं डिफिनीशन कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बताया हूं। जब वो डिफिनीशन समझ में आ जाएगी तो A डैश स्वयं फाइंड कर लेंगे। A डैश means U minus A. Here we may write as U minus A by the definition of complementary set. Who I have told you. Here write U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Minus A means 1, 2, 3, 4. और यहाँ क्या करना है, इस A के एलिमेंट को मीन्स 1, 2, 3, 4 यदि U में प्रेजेंट है तो उन्हें आउट कर देना है, मीन्स निकाल देना है। Here we get A dash equal 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. And this is the complementary set of A who is denoted by A dash. This is answer. Second, B dash. You solve same as I solve question first. Third, A union C dash. A union C dash means U minus A union C. Here write U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 minus here A union C. First write here set A 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 minus union A union C. Write C 3, 4, 5, 6. ऐसा भी कर सकते हैं, पहले A यूनियन C फाइंड कर लें, उसके बाद A यूनियन C के जो एलिमेंट U में है उन्हें आउट कर दें तो भी A यूनियन C डैश मिल जाएगा। या अभी मैं जो डिमार्गन रूल बताया उसका भी यूज यहाँ कर सकते हैं। A यूनियन C डैश इक्वल A डैश इंटरसेक्शन C डैश मीन्स A डैश फाइंड कर लें, U माइनस A फाइंड कर लें और U माइनस C फाइंड कर लें, उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, वो भी A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा जो कि A यूनियन C डैश के इक्वल होगा। Here we may write as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minus
इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? दोनों सेट के सभी एलिमेंट से एक सेट फाइंड करेंगे और वही सेट उन दोनों सेट का यूनियन कहलाएगा। मीन्स सम्मिलन, हिंदी में सम्मिलन कहते हैं, सम्मिलन कहलाएगा। सो A union C dash, here we get equal 1 2 3 4 5 6 इन दोनों सेट के यूनियन में है, इन्हें आउट कर देते हैं 7 8 9। दिस इज आंसर एंड दिस इज कॉल्ड A union C dash makes complementary set of A union C। बच्चों सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, लेकिन बस वही जो मैं बताया, डिफिनीशन सभी लर्न होनी चाहिए। सभी थ्योरम जितनी बता चुके हैं वो सभी थ्योरम अपनी फेयर कॉपी में प्रूव करेंगे, और जो थ्योरम हम नहीं प्रूव किए हैं उन्हें बुक का हेल्प लेकर के प्रूव करेंगे। यदि प्रॉब्लम आए तो कमिटमेंट करेंगे। हम उस भी थ्योरम को या जिस भी प्रॉपर्टी को नहीं प्रूव किए हैं उसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके समझा देंगे। नेक्स्ट 4 पार्ट, फाइंडिंग हियर A union B dash, same you can find A union B dash as third part A union C dash। And now I am going to solve some other important question related set। बच्चों में पावर सेट की डिफिनीशन बता चुका हूं। यहां पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इन्हें भी अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ये अदर बुक से क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। सभी उप समुच्चय लिखिए। First, given set A, सबसेट्स मैं लिख रहा हूं। मैं बता चुका हूं फाई who is the null set, रिक्त समुच्चय is the subset of each set। फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसलिए एक तो फाई होगा मीन्स नल सेट, और दूसरा
एलिमेंट ए से जो सेट मिलेगा वो होगा। एक ही एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट गिवन है यहाँ, इसलिए इसका सबसेट फाई और ए होगा। मैं ये भी बता चुका हूं n अवयवों वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। 2 पावर n होती है। n is the number of element in given set. Here number of element is 1. So total number of subsets of this set equal 2 power 1 equal to here 1 and this 2. Second, given set AB यहां सबसेट्स होंगे। एक तो फाई ऑलरेडी सबसेट होगा इस बी सेट का, दूसरा एलिमेंट ए लेकर के एक एलिमेंट ए लेते हैं और इससे सेट बनाएंगे, वो भी सबसेट होगा। सबसेट की डिफिनीशन बता चुका हूं, यदि वो डिफिनीशन लर्न है तब समझ में आएगा, वरना नहीं समझ पाएंगे। बी और दोनों सेट लेकर ए बी। हियर नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल 1 2 3 4 और थ्योरम के अनुसार भी हियर नंबर ऑफ एलिमेंट 2, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल 2 पावर 2 इक्वल 4। यदि ये बताना हो कितने सबसेट्स होंगे तो डायरेक्ट उस थ्योरम का यूज करके हम बता सकते हैं कि सबसेट्स कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 कितने सबसेट होंगे ये आसानी से बता सकते हैं। थर्ड 1 2 3 गिवन सेट 1 2 3। Here total number of subsets 2 power 3 equal 8. First 5 all subsets 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3। total number 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सबसेट्स होंगे इस गिवन सेट के। सेकंड क्वेश्चन, पीए के कितने अवयव होंगे यदि ए इक्वल 5। बच्चों ये सब मैं बता चुका हूं, रिवीजन के तौर पर देखें ये क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पीए के कितने अवयव होंगे? पीए, क्योंकि ये अदर बुक से क्वेश्चन है इसलिए मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। पीए के कितने अवयव होंगे? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पीए, कितने अवयव होंगे यदि ए इक्वल 5। देखिए A equal 5 means A is the null set और इसलिए इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल 0 होगी, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगी तो हमें एक भी उप समुच्चय नहीं मिलेगा, और जब एक भी उप समुच्चय नहीं मिलेगा तो हमें कोई घात समुच्चय में अवयव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पीए में अवयव 0 होंगे, इसलिए पीए 5 होगा। पीए में यहाँ क्वेश्चन ये है कि पीए के कितने अवयव हैं। यदि ए इक्वल 5 तो पीए
के अवयवों की संख्या जीरो